Let's start part 9 of rotational dynamics. In previous lectures, we have studied till the topic that torque of rotating body. Now, what we are going to see, that is conservation of angular momentum. As you can see, first of all, what we should understand what is the meaning of conservation. What does it mean? If we say any quantity of the body is conserved, that means the whole value, or you can say as a whole, that is not going to change, that will remain same throughout the process, throughout the system. uh, what we have to see here, we have to see here the conservation of angular momentum. So in previous lectures we have seen linear momentum, uh, that is analogous to angular momentum. Force is analogous to torque. So these are two comparable quantities in two types of motion, like in case you can say in linear motion and in rotational motion. What we have to see here, as we know, linear momentum of an isolated system is conserved. यहाँ पे जो भी ये बता रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब एक बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. इट इज टर्म्ड एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल मीन्स एज अ सिंगल बॉडी. उसका जो सबका लीनियर मोमेंटम होगा, सारे पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा, आइसोलेटेड मतलब उस बॉडी के ऊपर कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा, सिर्फ जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो अपना मोशन कर रही, परफॉर्म कर रही है. इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, अगर बॉडी अपने ही प्रीवियस स्टेट में है, जिस स्टेट में थी, अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर वेलोसिटी, वो चेंज नहीं होगी. अगर वो चेंज नहीं होगी तो बॉडी के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा. तो जिस मोमेंटम में पहले थे उसी मोमेंटम में अभी भी रहेंगे. तो यहाँ पे कंडीशन यही बोला है कि अगर बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है तो वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगना चाहिए. अनबैलेंस फोर्स मतलब कि अगर रोटेशनल के सपोज टू फोर्स लग रहा है, एक इधर और एक इधर, दोनों फोर्स फॉर्म करेंगे एक कपल, दैट इज टॉर्क फॉर्म करेंगे. अगर दोनों फोर्स का डायरेक्शन देखा जाए तो डिफरेंट है. अगर दोनों अनबैलेंस फोर्स है तो एक जगह ज़्यादा फोर्स लगेगा और एक जगह कम फोर्स लगेगा. तो इसके वजह से हमको नेट फोर्स का जो वैल्यू मिलेगा कुछ नॉन ज़ीरो नंबर मिलेगा, यू कैन से ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर मिलेगा. तो अगर फोर्स बैलेंस्ड है तो दोनों का एक्शन रिएक्शन मिलके आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा. लेकिन अगर फोर्स अनबैलेंस है, उस केस में क्या होगा कि आपका जो लीनियर मोमेंटम का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा. तो बेसिकली लीनियर मोमेंटम वैल्यू क्यों चेंज होगा, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर का जो अलग पैरामीटर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो सब भी चेंज हो जाएगा. नाउ एज वी नो दैट torque and angular momentum are the respective analogous to quantities to force and linear momentum in rotational dynamics. Force that is in linear motion, linear momentum that is in linear motion, they are comparable, they are analogous to quantities like torque and angular momentum in rotational dynamics. So force is analogous to torque, linear momentum is analogous to angular momentum. Formula of linear momentum, as we know, that L vector L equals to vector L equals to vector R cross P. As we know, this, what is vector R? R is position vector from the axis of rotation. This is body, suppose this is axis of rotation, there is particle, the distance of this particle from this axis of rotation. And what is P? P is the linear momentum of that rotating particle, so or you can say of that rotating body.
So we have this formula: vector L is equal to vector R cross vector P. Now we have to differentiate with respect to time. So what will uh, what will be the product? So dl by dt, we apply this u into v law of derivative, that is, in first term u remains as it is, we perform derivative of dv. In second, we remains as it is, we perform derivative of du, first term and second term. Similarly, we have u cross v. In cross product, order will not change. So the first term is r, so r remains as it is, cross derivative of momentum, plus in second term derivative of r cross linear momentum. So now we have two new terms, dp by dt, dr by dt. But rate of change of momentum with respect to time is nothing but force. Another thing, rate of change of position with respect to time is nothing but velocity. So these are the new two terms which are going to be added. And what is the formula of momentum, mass into velocity? So at the place of dp by dt we will put force, at the place of dr by dt we will put velocity, at the place of momentum we will put mass into velocity. So mass को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी. और जब किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है अगर सेम है, दैट इज आई क्रॉस आई, so it is nothing but I sin theta. I cross I means both are parallel, means theta is equal to 0. So sin theta means sin 0, which is nothing but 0. So I into 0, answer will be 0. So V cross V is nothing but 0. So that's why we remain only with R cross F, because at the place of dp by dt we have put F. So this V cross V will be 0. So rate of change of momentum with respect to time, angular momentum with respect to time, is nothing but vector R cross vector F. But what we know, what is vector R cross vector F? This vector R cross vector F is nothing but torque, as we have seen in previous lectures. So at the place of dl by dt equals to R cross F, we will put torque. So it will become dl by dt equals to torque. So that's why dl by dt is equal to torque. Another thing is that if torque is 0, so जो rate of change of angular momentum with respect to time होगा उसका वैल्यू भी क्या होगा, 0. मतलब जो एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का है वो चेंज नहीं हो रहा है. जब पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है तो पूरे बॉडी का, फिर सबका मिला के पूरे बॉडी का भी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा. तो जो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. इसलिए अगर जब भी टॉर्क 0 है, टॉर्क मतलब क्या, कि कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, मतलब बॉडी पे दो फोर्स, रोटेशन के लिए दो फोर्स काम कर रहा है. टॉर्क में तो हम लोग दो फोर्स कंसिडर करते हैं. जब भी टॉर्क का वैल्यू 0 आ रहा है मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा बॉडी पे, तो उसका बॉडी का जो प्रीवियस स्टेट मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम L इज कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क. अगर टॉर्क जो अनबैलेंस टॉर्क है अगर बॉडी पे काम नहीं कर रहा है तो आपका एंगुलर मोमेंटम बॉडी का कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट रहेगा मतलब कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. Now what are the application of this thing, angular conservation of angular momentum? First example is ballet dancers, and second example is diving in a swimming pool during competition. Ballet dancers, we have seen competition, there are dancers, they are dancing on the ice floor,
or they have very special kind of concept while they are dancing. So what is that basically? What happens? They are dancing on the floor, while when they need to perform very high amount of rotation, or you can say जब वो फ्लोर पे बहुत तेज़ी से खुद की बॉडी को ऐसा घुमाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग करते हैं कि अपना बॉडी है उसके लेग्स को भी क्लोज कर लेते हैं, और जो आर्म्स है उसको ओपन नहीं करते, उसको क्या करते हैं, उसको फोल्ड कर लेते हैं, आर्म्स को भी फोल्ड कर लेते हैं। जो बॉडी है, लेग्स भी नज़दीक रहेगा और आर्म्स भी फोल्ड करके बॉडी के नज़दीक आ जाएगा। तो इस केस में उनका एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है, और जो बॉडी का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है मैक्स टू मैक्स यहाँ तक है और यहाँ तक है, तो इनर्शिया का वैल्यू भी कम हो जाता है। तो बॉडी इतने दूर में घूमेगी, जब इनर्शिया कम हो गया तो उसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ जाता है, एकदम तेज़ी से वो लोग फिर अपनी जगह पे एक्सिस पे रोटेट करने लगते हैं। यही को कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे ही वो लोग ने अपनी आर्म्स जो फोल्ड किए हैं, अगर अपनी आर्म्स ओपन कर दिए तो उनका जो एक्सेस तो वही है, लेकिन जो बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो पहले यहीं तक था लिमिटेड, अब यहाँ तक चले गया। तो बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया। जब मास बढ़ गया तो अल्टीमेटली बॉडी का इनर्शिया भी बढ़ेगा। जब बॉडी का इनर्शिया बढ़ जाएगा तो उनका जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर स्पीड है, वो कम हो जाएगा। ये किस लिए करते हैं? ताकि उनका उस फ्लोर पे स्लिप ना हो, सेफ रहे। Next thing is that what we have to see, as we know that formula of this angular momentum is I cross omega, this thing, inertia into angular frequency. Formula of angular frequency is nothing but 2 pi, and for conservation of angular momentum this 2 pi n remains constant. So ये सब जो स्पीड उन लोग का, इनका जो एंगुलर स्पीड चेंज हो रहा है और इनर्शिया जो चेंज हो रहा है, वो इनिशियल स्पीड में आएगा नहीं। जब बॉडी के पास एक सर्टेन स्पीड आ जाती है मोशन करते वक्त, वो पर्टिकुलर स्पीड पे ये सब जो एक्शन है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का एक्शन है, वो एक्शन उसी स्पीड पे ही परफॉर्म हो सकता है। तो अगर उतना स्पीड नहीं रहेगा बॉडी का, तो ये सब जो पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। बैले डांसर्स क्या है, जो ड्यूरिंग आइस बैले डांसर टेक राउंड्स ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर रेडाई। कभी वो लोग आर्म्स को क्लोज कर ले तो उनका रेडियस छोटा हो जाता है, कभी आर्म्स को स्ट्रेच कर ले तो ओपन कर ले तो उनका रेडियस बड़ा हो जाता है। सेम थिंग जैसे भी बताया। तो जब उनका रेडियस छोटा हो जाता है तो उनका जो बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कम है, स्पीड उनका बढ़ जाता है क्योंकि इनर्शिया उनका कम हो जाता है। और जैसे स्ट्रेच किया तो उनका एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन अभी यहाँ तक चले आया, तो उनका रेडियस भी बढ़ गया और उनका इनर्शिया भी बढ़ गया। इनर्शिया बढ़ गया तो उनका जो ओमेगा हो वो कम हो जाएगा और उनका स्पीड स्लो हो जाएगा। और ये किस लिए करना पड़ता है उनको? क्योंकि वो आइस पे स्लिप नहीं होना चाहिए, स्लिपिंग से बचे रहना चाहिए, इसलिए ऐसा परफॉर्म करना पड़ता है। दूसरा जो एग्जांपल है अपने पास, दैट इज़ डाइविंग स्विमिंग पूल। जब स्विमर कंपटीशन के टाइम ये डाइविंग बोर्ड है सपोज, और नीचे स्विमिंग पूल है, वाटर। अब जब यहाँ से वो जंप करने वाला होता है तो उसका जो बॉडी है वो ऐसा है, और वहाँ से बॉडी को स्ट्रेच करके रखता है। और स्ट्रेच करता है मतलब उसका बॉडी का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ गया। जब बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया तो बॉडी का इनर्शिया भी बढ़ गया। तो उस वक्त एट द टाइम ऑफ जंप उसका बॉडी ऐसा
कर्ल नहीं बनाता, ऐसा घूमता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बोर्ड को छोड़ता है, बोर्ड से जंप करता है, जिस वक्त एट द मोमेंट ही जंप्स, उसका बॉडी जो पहले स्ट्रेच है वो क्या हो जाता है, वो सब बैक, लेग्स, हैंड सब ऐसा श्रिंक कर लेता है, सिकोड़ लेता है एक जगह पे, और बॉडी का जो पहले इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मास था अब सिर्फ इतना रह जाता है। तब उतना जब मास डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया तो उसका जो इनर्शिया भी है वो भी कम हो गया, तो उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो बढ़ जाता। तो बॉडी जो पहले ऐसा रोटेट नहीं कर रही थी स्ट्रेच के टाइम, अभी फोल्डिंग के टाइम क्या करेगी, बहुत स्पीड से रोटेट करेगी। तो 3 से 4 रोटेशन करके वो लोग फिर से क्या करते हैं, अपने बॉडी को ओपन करते हैं, और पूरे बॉडी को ओपन करते हैं। ये हेड हो गया, ये हैंड हो गया, और ये फीट हो गया, जो भी है स्ट्रेच करके, मतलब जैसे कि वाटर सरफेस में गिरते वक्त क्या करेंगे, अपने बॉडी को जो पहले फोल्डेड बॉडी थी, वो बॉडी क्या करेंगे, वो बॉडी को पूरा स्ट्रेच ओपन कर देंगे, ताकि जब वाटर में एंटर करते रहें तो उनका यहाँ पे फोर्स ज़्यादा ना लगे, और स्मूथ लैंडिंग या फिर स्मूथ एंट्री वाटर में होना चाहिए। तो उनको बेसिकली करना क्या होता है, उनको करना होता है कि कितना रोटेशन वो लोग परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग जंप इन द एयर। तो एयर में जब रहते हैं वो लोग 3 से 4 रोटेशन परफॉर्म करते हो। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि दे फोल्ड देयर होल बॉडी एट अ स्मॉल, एटलीस्ट वेरी, they try to shrink as small as they can. That's why their body start rotating in the air due to conservation of angular momentum. And in this place you can see angular momentum is conserved. और जब बॉडी स्ट्रेच था तो उसमें कुछ एंगुलर मोमेंटम नहीं था, इनर्शिया था। बॉडी भी फोल्ड कर लिया तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ गया, इनर्शिया कम हो गया। तो दोनों इंटरचेंज हो रहे बार बार। दोनों एग्जांपल्स आप समझ सकते हो कि एक जगह इनर्शिया बढ़ रहा है तो दूसरी जगह क्या कम हो रहा है, ओमेगा कम हो रहा है, उसका स्पीड कम हो रहा है। इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड कम होगा। दूसरी बात, अगर इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर स्पीड उसका बढ़ जाएगा। तो कहने क्या मतलब हुआ कि जो इनर्शिया है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड, और यू कैन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट वी शुड नो। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। दैट्स ऑल। Another thing is that we are going to see rolling motion. Oh, what is the rolling motion? Rolling motion पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि रोलिंग मोशन हम लोग जो परफॉर्म करते हैं, सपोज यहाँ पे जो रोलिंग मोशन यहाँ कंसिडर किया जाएगा वो कंसिडर किया जाएगा ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल है और इंक्लाइनेशन है, यहाँ से कोई बॉडी है जो रोल करके आएगी। अब बॉडी की में हमको आइडियली कंसिडर करना पड़ेगा कि उसका जो सेंटर ऑफ मास एकदम बॉडी के सेंटर में है। अब बॉडी चाहे यहाँ रहे, बॉडी चाहे यहाँ रहे, बॉडी चाहे यहाँ रहे, तो हर जगह उसका सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे है। सेंटर ऑफ मास तो चेंज हो नहीं रहा। तो सेंटर ऑफ मास को अगर हम लोग देखेंगे तो वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? लीनियर मोशन। लेकिन अगर बॉडी को देखेंगे तो बॉडी हर जगह पे रोटेट हो रही है, यहाँ से रोटेट हो रही है, यहाँ से रोटेट हो रही है, यहाँ से रोटेट हो रही है। तो बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है एक तरह का, अगर इधर उसका सर्कमफ्रेंस देखेंगे तो बॉडी परफॉर्म कर रही है सर्कुलर मोशन, और उसका सेंटर ऑफ मास क्या परफॉर्म कर रहा है? लीनियर मोशन। तो दोनों चीज़, सर्कुलर मोशन प्लस लीनियर मोशन, दोनों कंबाइन होकर हमको कौन सा मोशन बनाते हैं? रोलिंग मोशन। जब हम लोग कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब कोई बॉल थ्रो करते हैं तो बेसिकली ये सब बॉल फेंकते हैं नीचे, सरफेस के थ्रू होना चाहिए। तो रोलिंग होने के लिए यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। स्टार्टिंग हमारे फोर्स की वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन उतना अप्लीकेबल नहीं होता, तो बॉडी स्लाइड होती है। जैसा बॉडी है वो बॉडी स्लाइड होके थोड़ी दूर तक आती है एज इट इज़। लेकिन जहाँ पे हमारा फोर्स का वैल्यू कम होने लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आने लगता है बॉडी में सरफेस की वजह से, तो बॉडी वहाँ पे फिर रोल करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे आएगी, फिर ऐसे रोलिंग यहाँ पे बॉडी का स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्लाइडिंग है, ये स्लाइडिंग नहीं कंसीडर करना है यहाँ पे। आइडियल जब रोलिंग मोशन करेंगे तो रोलिंग मोशन में सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा कॉन्सेप्ट में, और बॉडी सिर्फ क्या करेगी?
उसका सर्कमफ्रेंस सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी और उसका सेंटर ऑफ मास एक ही जगह जाएगा। अगर बॉडी यहाँ है तो भी सेंटर ऑफ मास यहीं है, बॉडी यहाँ है तो भी सेंटर ऑफ मास वहीं है, बॉडी यहाँ है तो भी सेंटर ऑफ मास वहीं है। तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही वो सीधा सीधा लाइन में जा रहा है, बट यहाँ पे सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है? बॉडी का जो सर्कमफ्रेंस है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो बॉडी का सर्कमफ्रेंस वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, प्लस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? रोलिंग मोशन बनेगा। ये आप किसी में भी देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स क्या क्या दिया है, लाइक कोई सिलेंडर आपने से स्लाइड कर दिया, से रोल कर दिया, कोई स्फेरिकल बॉल वगैरह, बड़ा फुटबॉल वगैरह आपने से पुश कर दिया तो भी उस पुशिंग का टाइम क्या होगा? थोड़ा स्लाइड होगा, फिर बाद में रोलिंग करना स्टार्ट कर देगा। व्हील है, व्हील आपने से पुश कर दिया तो भी रोलिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन क्या है? फॉर प्योर रोलिंग मोशन वी नीड टू कंसिडर सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। प्योर रोलिंग मोशन के लिए क्या चाहिए? सर्कुलर मोशन चाहिए और लीनियर मोशन साइमल्टेनियस, दोनों एक साथ चाहिए। इंडिविजुअल मोशन इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, अलग अलग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन कब डिस्क्राइब कर सकते हैं? कि जब उसका सेंटर ऑफ मास उसके बॉडी के सेंटर में रहेगा तो ही हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ईजी पड़ जाता है उस वक्त, और उसका जो सेंटर ऑफ मास वो सिर्फ लीनियरली जाता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होता। तो इस केस में हम लोग यही कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास हम लोग सेंटर में कंसीडर करेंगे, बॉडी एकदम आइडियल रहनी चाहिए, और जिसकी वजह से हम लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी आगे का जो है, कंसीडर अ रोलिंग बॉडी। अगर रोलिंग बॉडी है तो उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास होना चाहिए सर्कुलर मोशन, इट हैज़ सर्कुलर मोशन अबाउट इट्स ओन सिमेट्रिक एक्सिस। बॉडी है, उसका जो सिमेट्रिक एक्सिस है ऐसा, उसके अलाउंग क्या करेगा? वो सर्कुलर मोशन करेगा। और लीनियर मोशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर मोशन मीन्स ट्रांसलेशन मोशन कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ? जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का वो क्या परफॉर्म करेगा? लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। इतना आपको समझना, सेंटर ऑफ मास। नाउ बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी एज द सम ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बॉडी तो एक रोटेशन कर रही है तो एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा, और सेंटर ऑफ मास उसका लीनियर मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगा अगर ये रोलिंग कर रही है तो बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज आई। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या मिलेगा? तो लीनियर मोशन के लिए हम लोग बताएंगे वी इज लीनियर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का लीनियर स्पीड कितना कंसिडर किया है? वी। और बॉडी का जो रेडियस है दैट इज आर। और नाउ और एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी रोटेशन, बॉडी कितना जो रोटेट कर रही है उसका एंगुलर स्पीड कितना? दैट इज ओमेगा। और ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? हमको पता है वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर हो जाएगा। ये हमको दिमाग में रखना। आगे का जो है वी हैव टू कंसीडर मास कैपिटल एम दैट इज मास ऑफ द बॉडी। के इज रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी। रेडियस ऑफ जायरेशन इसलिए कंसीडर किया क्योंकि हमको बताना है सेंटर ऑफ मास से कोई एक पॉइंट है जहाँ पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है और वहाँ से क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो जो जितना डिस्टेंस होगा यहाँ से दैट विल बी कंसिडर्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। और रेडियस ऑफ जायरेशन का हमारा जो फार्मूला है दैट इज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, एम इज द मास ऑफ द बॉडी, आई इज द इनर्शिया। नाउ व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी? टोटल काइनेटिक एनर्जी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला हुआ है। रोटेशनल काइनेटिक इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल क्या है हमारे पास? हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। सो इनर्शिया इज कंपेरेबल टू मास, angular velocity is comparable to linear velocity. Now as we know that value of I is m k square and value of omega is v upon r. Omega is equal to v upon r. Well, this is the simple half mv square, that is translation kinetic energy. So at the place of I put mk square, at the place of omega put v upon r square and this half omega square. So what are the common terms here? मास, हाफ मास इंटू वेलोसिटी दोनों में है, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इतना टर्म कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ के स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे लिखा प्लस कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, मतलब 1 बचेगा, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1. This is the notation for, or you can say derivation for the total kinetic energy. What is the note here? Static friction is essential for a purely rolling motion. अगर रोलिंग मोशन करवाना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहना ज़रूरी है. स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए क्योंकि बॉडी को सरफेस पे पकड़ के रखेगा और बॉडी का आगे वाला सरफेस वहाँ पे फिर अपने आप को आगे पुश कर पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे रोलिंग परफॉर्म होना पॉसिबल हो सकता है. अगर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, सपोज स्मूथ बॉडी है और आप उस पर चलना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बॉडी सिर्फ स्लाइड कर जाएगा, कुछ रोलिंग नहीं होगा, जो आपने पुश किया फोर्स लगा वो पूरा स्लाइड हो जाएगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा. तो इसलिए वहाँ पे रोलिंग मोशन के लिए फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है, स्टैटिक फ्रिक्शन. नाउ द नेक्स्ट डेरिवेशन व्हाट वी हैव टू सी लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड. जब बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन से रोलिंग मोशन कर रही है तो उस वक्त हमको क्या निकालना है, उसका लीनियर एक्सेलरेशन और उसका लीनियर स्पीड निकालना है. मतलब हमको ए निकालना है और वी निकालना है. तो यहाँ पे कंसीडर क्या करना है, यहाँ पे कंसीडर किया है कि एक बॉडी है, एक इंक्लाइन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन है. दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है. कितने वर्चुअल हाइट से आ रही है, एच. अगर ये थीटा है तो ये हाइट ले लेते 90 डिग्री हो गया, तो हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा. और इसको हमने जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक बॉडी जो डिस्टेंस कवर की उसको हमने एस कंसिडर किया. क्या होता है साइन थीटा, अपोजिट दैट इज एच अपॉन एस हाइपोटेनस. तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस इंटू साइन थीटा. तो एच का वैल्यू क्या है, एस इंटू साइन थीटा. तो यहाँ पे बताना है आपको, जो बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ स्टार्ट हो रही है वो रेस्ट पे रहता है. बॉडी स्टार्टिंग में क्या रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे रहेगी, मतलब u इज इक्वल टू 0 रहेगा और फाइनली पहुँचते पहुँचते कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी आ जाता है. यहाँ पे आपको जो दिखाया है वो ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस है जहाँ से स्टार्ट कर रहा है रोलिंग, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ एस. और बॉडी एक तो रोलिंग मोशन कर रही है, तो बॉडी का यहाँ पे रोलिंग मोशन आपको समझ में आ रहा होगा. और दूसरा चीज़ यहाँ पे दिखाया है, वी दिखाया है. वी मतलब क्या है, इस जो सेंटर ऑफ मास है उसका डायरेक्शन फिक्स है, उसका पोजीशन भी फिक्स है. मतलब सेंटर ऑफ मास क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो लीनियर वेलोसिटी किसका मिलेगा, सिर्फ सेंटर ऑफ मास का मिलेगा. तो हमको ध्यान में रखना. नाउ consider a rigid body has mass m and radius r. rigid body है जिसका मास m है और रेडियस r है, that is rolling down on an inclining plane without slipping. ये इंपॉर्टेंट है, स्लिपिंग नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, रोलिंग हो रहा है. तो वहाँ पे क्या क्या पैरामीटर सब आएगा, I that will be moment of inertia of the body. I का वैल्यू क्या होता है, एम के स्क्वायर. थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन के बीच में. v है लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का जो भी लीनियर वेलोसिटी होगा. और h क्या है, उसका हाइट, जहाँ से बॉडी स्टार्ट कर रहा हो जहाँ पे आकर ख़त्म हो रहा है, दोनों के बीच का हाइट कितना है, वो h है. और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, वो v अपॉन आर, ये आपको पता है, ठीक है. सपोज नाउ बॉडी इज रोलिंग, अगर बॉडी रोल कर रही है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है, हमको हाफ एम वी स्क्वायर पता है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ पे करना क्या है, दोनों का वैल्यू पुट करना है. दोनों का वैल्यू मतलब आई का वैल्यू और ओमेगा का. आई का वैल्यू क्या होता है, एम के स्क्वायर. ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, वी अपॉन आर. ये स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब यहाँ पे सेम चीज़, दोनों कॉमन ले लो. क्या क्या कॉमन निकल रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लिया. तो इधर क्या बचा, इधर 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचा, ठीक है. अब अगला चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी होती है, स्टार्टिंग में तो कुछ मोशन नहीं है बॉडी का, तो बॉडी पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है उस पॉइंट पे, क्योंकि हाइट पे, तो हो जाएगा एम जी एच. क्या हो जाएगा, एम जी एच. तो जो पहले टोटल एनर्जी था वो सिर्फ एम जी एच था. अब बाद में जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट टोटल पोटेंशियल एनर्जी. ये पोटेंशियल एनर्जी कब, जब बॉडी का इनिशियल स्पीड 0 था तब. और ये टोटल एनर्जी कब, जब बॉडी का फाइनल स्पीड v आ गया तब. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है. तो जो ई है
टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है, एम जी एच। और यहाँ पे भी ई का वैल्यू यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर 1+k² है। तो दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, एम जी एच रखेंगे। तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1+k²/r²। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, जी एच इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर 1+k²/r²। यहाँ पे हमको चाहिए सिर्फ लीनियर वेलोसिटी, किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो ये जो टर्म है 2 इधर आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाइड है, इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये स्क्वायर है, उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्या मिला हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh/1+k²/r²। दिस इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल अलॉन्ग द प्लेन। लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वही आपको पता है, जहाँ स्टार्ट किया, जहाँ पे खत्म किया इंक्लाइंड प्लेन पे, वो कितना है, एस है। और एस का वैल्यू कितना आ रहा है, h/sin थीटा। कैसे, क्योंकि ये प्लेन है, ये थीटा है, और ये एच है, और ये एस है। और साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होगा, h/s। लेकिन हमको s चाहिए, तो s इधर आएगा, साइन थीटा इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू h/sin थीटा बन जाएगा। दैट इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज कंसिडर इक्वेशन 1। ये दोनों कंसिडर करके रखो। अभी हमको पता है जब बॉडी स्टार्ट नहीं हुआ रहता रोलिंग, उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसका 0 है। और दिस इज काइनेमेटिकल इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्यों लिया ये, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। अब फ्रॉम 1 and 2 v का वैल्यू कितना है, 2, v स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2gh/1+k²/r²। 2 में s का वैल्यू था, दैट इज h/sin थीटा। तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, h कैंसिल हो रहा है। तो क्या बच रहा है, सिर्फ बच रहा है g/1+k²/r² इक्वल्स टू a/sin थीटा। सिर्फ ये दो चीज़ बच रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए साइन थीटा वहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, g/sin थीटा/1+k²/r²। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे दो चीज़ आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकाला है, और ऊपर हमने क्या निकाला है, वेलोसिटी निकाला। ठीक है, ये दो चीज़ फाइंड आउट करना था। यहाँ पे ये चैप्टर है, इसके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू।